Hello guys. In morning our lecture was there, but due to some problem, due to network issue, I was not able to conduct your lecture in morning. And today now also I am facing the same issue of a network. That's why I am sending this video to you guys. So watch this video carefully, and whatever I am teaching to you guys in this video, watch. I am teaching everything practically, so you have to practice it at home. Open Notepad. In Notepad, type the program, see whether you are able to execute a program or not properly. Just check it out yourself. Okay, so do practice these programs at home. This thing I have told you yesterday as well. In morning I have asked the question to you guys whether you have practiced this, but no one was able to give me answer. No one is practicing at home. Many of you are having computer at home, you are having laptop at home, but no one is doing practice of computer at home. Then next thing, there was one guy who have asked me about the notes. तो मैं बता दूं कि जो पहले मैंने 5 चैप्टर सीखा है, पहले 5 चैप्टर मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 6 चैप्टर, 6 नंबर का चैप्टर, ये जो मैंने आपको सिखाया इनके नोट्स में ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी हूँ और इसके ऊपर एग्ज़ाम भी हो चुकी है. ओके और जो ये चैप्टर के नोट्स है, मैं ये चैप्टर आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर आई विल गिव यू द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर. रैंडमली मैं बीच में से ही नोट्स नहीं दूंगी, या दिए भी तो किसी कोई कॉज ऑकरेंस के वजह से दूंगी, बट फिलहाल मैं इस चैप्टर के नोट्स ना मैंने किसी को दिए हैं, ना मैं अभी फिलहाल में देने वाली हूँ. आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर आई विल गिव यू द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर. सो instead of focusing on notes, first you focus on the chapter, that what I am teaching to you guys, and you have to learn this very well because it's necessary for your entire life. So let's move further with the chapter. Our chapter is chapter number 7, Introduction to HTML. This chapter we have started in last week. In this chapter I have covered your 2 points. In last week I have covered basics of HTML, and yesterday we have started with structure of an HTML document. So let's see them. So in basics of HTML we have studied basic terms that are used in HTML, like tags, attributes and elements. I told you what is meant by tags, attributes and element. We have seen HTML editor, that is also called as a notepad editor, how to create your HTML program, and how to view your HTML output. All these things we have seen in previous lecture, in a lecture which we have taken in a last week. Okay, now so let's proceed with the further point, that is structure of an HTML document. So in structure of HTML document, yesterday we have learned HTML element, head element, how to use the. So yesterday we have seen that HTML element, we have seen head element. In head element, how to give the title to the web page. We have seen that practically. I showed you practically by sharing screen. Okay, and we also learned the one of the attribute from body element, that is body background attribute. Body element इसलिए बोला है क्योंकि body element जो हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम में, ओके उसके अंदर हम जो attributes यूज़ कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं. That one is background attribute that we have seen yesterday practically. Next is bg color, then text attribute, left margin, top margin attribute. So these are the attribute which we can use practically, which we can use in body element. Okay, so let's see practically that how to use a bg color attribute. So here is the program, this one is the program. So this one is the program. I already typed the program over here. कल हमने बैकग्राउंड एट्रीब्यूट देखा था यूज़ करके. बैकग्राउंड एट्रीब्यूट में हम क्या करते हैं ना, वैल्यू देते हैं जिसके अंदर हम इमेज का नाम देते हैं कि वेब पेज के बैकग्राउंड में हमें कौन सी इमेज चाहिए करके. ओके, सेम प्रोग्राम है. हमने क्या किया, HTML टैग डिक्लेयर किया है, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग. उसके बाद हमने यहाँ पे बॉडी टैग, स्टार्टिंग बॉडी टैग डिक्लेयर किया, एंडिंग बॉडी टैग डिक्लेयर किया. बट मैंने जैसे आपको कल बोला था कि हम प्रोग्राम में क्या करते हैं, टाइटल देते हैं. तो टाइटल हम क्या करते हैं ना, वी गिव हेड टैग. बॉडी टैग, ऐसा टोल्ड यू, बॉडी टैग के ऊपर हेड टैग दिया जाता है. जैसे कि हमारी बॉडी है ना, तो जो नीचे का पार्ट है दैट इज़ सेपरेट एंड आवर हेड इज़ सेपरेट. तो हेड क्या होता है, ऊपर होता है और बाद में नीचे बॉडी होती है. सेम वे में कि HTML यहाँ पे क्या है, टैग में हमारा हेड टैग है, हेड टैग के बाद यहाँ पे हमारा बॉडी टैग है.
ओके। और हेड टैग में हम कौन सा टैग यूज़ करते, कौन सा सब टैग यूज़ करते, वी आर यूजिंग अ टाइटल टैग टू गिव द टाइटल टू द प्रोग्राम। ओके। अब इसके बाद हमारी एट्रीब्यूट की बात चल रही है कि हमने बैकग्राउंड एट्रीब्यूट कल देखा कि कैसे यूज़ करना। अभी बॉडी एलिमेंट का मीनिंग क्या है, द मीनिंग ऑफ बॉडी एलिमेंट इज दैट दीज आर द एट्रीब्यूट दैट वी कैन ओनली यूज़ इन दिस बॉडी टैग, इन दिस बॉडी स्टार्टिंग टैग। मैंने कल ही आपको बोला था कि आप है ना जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं हम उसे एंडिंग टैग में नहीं यूज़ करते, मतलब जिस टैग में स्लैश होता है उस टैग में नहीं यूज़ कर सकते। हम एट्रीब्यूट सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे यूज़ करते हैं, वी आर ओनली यूजिंग एट्रीब्यूट इन द स्टार्टिंग टैग ऑफ द एलिमेंट। तो बॉडी टैग के ना कुछ एट्रीब्यूट है जिसमें से एक बैकग्राउंड वाला एट्रीब्यूट है जो हम कल यूज़ कर चुके थे। आज हम दूसरा एट्रीब्यूट देखेंगे दैट इज़ बीजी कलर। बस बैकग्राउंड की जगह मैंने बीजी कलर एट्रीब्यूट लिया है और यहाँ पे इमेज नेम इक्वल टू देखिए मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इंस्टेड ऑफ गिविंग अ इमेज नेम देने की जगह मैंने क्या किया है, यहाँ पे कलर दिया है रेड। कौन सा कलर दिया है, रेड। तो बैकग्राउंड में मुझे क्या चाहिए, आज इमेज नहीं चाहिए, मेरे बैकग्राउंड जो है वेब पेज का वहाँ पे क्या आना चाहिए, रेड कलर आना चाहिए। इसके बाद ये बॉडी टैग के अंदर एक टैग डिक्लेयर किया है दैट इज़ पी टैग। कौन सा टैग है, बॉडी स्टार्टिंग टैग और बॉडी एंडिंग टैग के अंदर एक टैग डिक्लेयर किया है दैट इज अ सब टैग विच वी यूज विद इन अ बॉडी टैग दैट इज पैराग्राफ टैग, पी फॉर पैराग्राफ। तो पैराग्राफ स्टार्टिंग टैग और पैराग्राफ एंडिंग टैग के अंदर जो स्टेटमेंट दिखा है वो क्या होता है, इट गेट डिस्प्लेड ऑन अ ब्राउजर। ओके, so let's see the program now. I have declared inside a body tag, I have declared here attribute that is bg color equals to red, means I want a background color of a red. If you want some other color like you want green color or you want orange color or you want magenta or any other color, you can just give the value over here within inverted commas. Now it's time to save the program. So click on a file, click on save as. Wherever you have saved your program, select the destination, that is desktop. On desktop we are having a folder named video lecture. In that folder on the first day we have created HTML folder. Just click over it and give here name to the file, that is which program we are doing, we are doing the program of background color. So give name over here, relative name to the file as I told you, and with the extension .html, because we have to specify that this file which we are saving is not a notepad file, it is an HTML file. That's why we are giving .html extension and click on save. After clicking on save, minimize the file. After minimizing the file, go on a desktop where your folder is there, your program is being, wherever your program is being saved. So you have saved your program in video lecture folder. In video lecture folder there is a subfolder HTML, and in the HTML folder here it is your BG color program which you have saved. So right click over here to view the output in browser. Just select the code, just select the file. After selecting the file, right click over here, and after right clicking over here, just open with, go on open with, and select any one of the browser. I am selecting Google Chrome like yesterday, and here you see the title is visible over here. हमने यहाँ पे जो टाइटल दिया है that is HTML programming, तो वो कहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, हेड टैग में दिया है। हेड टैग में देने की वजह से टाइटल हमारे क्रोम ब्राउज़र पे कहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, हियर एट द टॉप। उसके बाद हमने क्या डिक्लेयर किया है, बॉडी टैग के अंदर क्या होना चाहिए, जस्ट आई एम क्लोजिंग दिस। तो बॉडी टैग के अंदर हमने बोला है बीजी कलर ऑरेंज मतलब क्या कि हमारा वेब पेज है उसका कलर क्या होना चाहिए, ऑरेंज। आफ्टर दैट here we have in body tag we have taken sub tag that is paragraph. तो paragraph में क्या दिया हमने text welcome to HTML, so that one is displayed over here. So in this way you can execute your code, you can execute your HTML code by giving color to your web page. Okay, now let's move further. So now after BG color attribute, next one is text attribute.
टेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है अभी, तो आपको याद होगा हम टेक्स्ट को भी कलर देते हैं। हम वर्ड फाइल है या HTML फाइल है तो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को भी कलर देते हैं। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट को कौन सा कलर दिया गया है, यहाँ पे टेक्स्ट को कलर दिया गया है ब्लैक कलर। कौन सा कलर दिया गया है, ब्लैक कलर। अगर हमें हमारा टेक्स्ट कोई और कलर में चाहिए ऑन अ वेबसाइट तो हमें क्या करना होगा ना, यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर जस्ट आई विल रिमूव दिस थिंग, आई विल रिमूव BG कलर एट्रीब्यूट, जस्ट उसकी को रिमूव करके बता रही हूँ, आपको अलग अलग प्रोग्राम करना है। तो मैंने क्या किया, बॉडी टैग के अंदर अभी क्या बोला है, बॉडी एलिमेंट, मतलब यहाँ पे बॉडी एलिमेंट मतलब क्या, ये किसका एट्रीब्यूट है, टेक्स्ट एट्रीब्यूट बॉडी एलिमेंट का। मतलब बॉडी जो स्टार्टिंग टैग है इसी के अंदर आपको ये टेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा। किस तरह यूज़ करोगे, तो बॉडी स्टार्टिंग टैग में you have to give a space over here. After giving space over here you have to type text. You have to type text. After typing text just give equal to sign, and after giving equal to sign you want in whichever color you want your text, like you want your text in ग्रीन कलर। कौन से कलर में चाहिए, ग्रीन कलर या फिर रेड कलर। तो आप क्या करो, उस कलर का नाम यहाँ पे एज अ फॉर्म ऑफ वैल्यू यहाँ पे दे दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। मैंने अभी ग्रीन दिया है। लेट्स सेव दिस प्रोग्राम, गो ऑन अ फाइल, क्लिक ऑन अ सेव एज। आफ्टर क्लिकिंग ऑन अ सेव एज, here it is already HTML folder I have selected within video lecture folder। और फाइल कौन सा है, हमें टेक्स्ट को कलर देना है। कौन सा, तो टेक्स्ट कलर। आई एम गिविंग इनटू द फाइल एज टेक्स्ट कलर डॉट HTML, टेक्स्ट कलर डॉट HTML एंड सेव द प्रोग्राम। अभी ये टेक्स्ट एट्रीब्यूट क्यों यूज़ किया है बॉडी टैग में, तो मुझे जो मैंने वेलकम टू HTML लिखा हुआ है ना, ये टेक्स्ट, ये कलर, ये मेरा ग्रीन कलर में डिस्प्ले होना चाहिए, इसलिए मैंने टेक्स्ट एट्रीब्यूट डिक्लेयर किया है। और वो एट्रीब्यूट मैंने क्या बोला है कि उसका जो भी रहेगा वो कौन से कलर में डिस्प्ले होना चाहिए, ग्रीन कलर में। मतलब ये टेक्स्ट कौन से कलर में डिस्प्ले होगा, ग्रीन कलर में। क्यों, क्योंकि मैंने बॉडी टैग मतलब मेन जो टैग है इतना, इसके अंदर क्या डिक्लेयर किया है, टेक्स्ट एट्रीब्यूट डिक्लेयर किया है जिसको वैल्यू दी है ग्रीन। तो आप आउटपुट में देख लीजिए कैसे हो रहा है। ओके, सो हियर आई विल गो इन अ फोल्डर वेयर एवर प्रोग्राम इज। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम है HTML। File, save as, and we have saved this program in video lecture in HTML folder. So I am going on a wrong folder. Okay, in video lecture you have to go on HTML folder. Okay, so here you can see that I have saved this program in the form of HTML file. You can view here the type of file. Just select the file. After selecting the file, right click over here, say open with, and I am opening it in browser. So here you can view I have removed here background. I have removed here background and my text is being displayed in green color. Green color में आपको मेरा text ये दिख रहा होगा. Okay, so in this way you can view your document. You can change the color of your text, or you can change the color of your text on a web page. Web page के ऊपर जो text है उसका color आप इस तरह change कर सकते हो by using a text attribute. अगर आपको text, आपको समझो background color भी चाहिए और एट अ टाइम आपको टेक्स्ट का भी कलर चाहिए, तो सिंपली क्या करना है ना, दोनों एट्रीब्यूट को साथ में यूज़ करना है। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज़ किया है, ग्रीन दिया है, जस्ट स्पेस दे दो। यहाँ पे आपको कलर भी देना है, BG कलर इक्वल टू एंड गिव हियर इन्वर्टेड कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा दे के यहाँ पे क्या दे दो, कलर का नाम दे दो जो आपको बैकग्राउंड में चाहिए। एंड आई एम प्रेसिंग Ctrl+S शॉर्टकट की। ओके, ये प्रेस करने के बाद हम आउटपुट देखेंगे। तो आप देख सकते हो टेक्स्ट एट्रीब्यूट में कलर कौन सा दिया है, ग्रीन। तो यहाँ पे कौन सा कलर आया, ग्रीन। और BG कलर, दो एट्रीब्यूट एक साथ भी आप यूज़ कर सकते हो बॉडी टैग के अंदर। दो एट्रीब्यूट भी आप एक साथ यूज़ कर सकते हो बॉडी टैग के अंदर। तो मैंने BG कलर में वैल्यू क्या दी, ऑरेंज। तो बैकग्राउंड में कलर क्या आया, ऑरेंज। सो in this way you can execute your code. In this way you can execute your code. Even we can change the color
instead of green I will give here red, and I am saving the program by Ctrl S because I have saved it once. I am pressing F5 shortcut key. So you can see that the color of my text is changed from green to red. Okay, so in this way you can execute your code, okay, HTML code, and in this way you can create your web page. Okay, so guys, here I have in today's lecture I have taught you about the BG color attribute and text attribute. Okay, two attributes are remaining, that also we will see over here. So the two attributes, the last two attributes which are remaining from body element that we are using within body element are left margin and top margin. लेफ्ट मार्जिन एंड टॉप मार्जिन होता क्या है, तो ऊपर से आपको यहाँ पे कितना डिस्टेंस छोड़ना है, मतलब आफ्टर टेक्स्ट ऊपर से मतलब कितना मार्जिन, ऊपर की जो मार्जिन होती है ना हेडर की, वहाँ से कितना डिस्टेंस लीव करना है, और ये लेफ़्ट साइड से, ये जो साइड है ना, ये लेफ़्ट साइड से कितना डिस्टेंस आपका लीव होना चाहिए, मतलब कितना गैप होना चाहिए, ये आप किससे डिक्लेयर करते हो, बाय यूजिंग लेफ्ट मार्जिन एट्रीब्यूट एंड टॉप मार्जिन एट्रीब्यूट। तो इनको यूज़ किस तरह किया जाता है, तो क्या करना है ना, प्रोग्राम में जाते हैं, यही प्रोग्राम में जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि हम बॉडी टैग के अंदर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, कॉमा देने की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट यू हैव टू गिव अ स्पेस ओवर हियर। सो लेफ़्ट मार्जिन मतलब ये जो लेफ़्ट साइड है यहाँ से कितनी स्पेस हमें लीव करना है, और टॉप मार्जिन मतलब ऊपर के साइड से कितनी स्पेस लीव करना है, और उसके बाद फिर आपका टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। तो लेफ्ट मार्जिन आई एम गिविंग हियर वैल्यू बाय गिविंग, आफ्टर गिविंग इक्वल टू आई एम गिविंग वैल्यू दैट इज़ 100। ओके, और यहाँ पे मैं टॉप मार्जिन का भी एट्रीब्यूट डिक्लेयर कर रही हूँ, और यहाँ पे भी मैं वैल्यू दूंगी 100। ओके, नाउ आई हैव ऑलरेडी सेव्ड दिस प्रोग्राम, सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट प्रेस Ctrl S और एल्स आई विल सेव द प्रोग्राम। क्लिक ऑन अ फाइल, क्लिक ऑन सेव एज, आफ्टर क्लिकिंग ऑन अ सेव एज, just here I have selected a folder already. Instead of text color, this program is on margin, so I am giving here margin.html and click on save. So here just select a file that is margin. Okay, we have given name to the program as margin. Go on open with and say Google Chrome. तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम में क्या किया, here what I have done, जस्ट मैंने यहाँ पे प्रोग्राम में क्या किया, मैंने यहाँ पे प्रोग्राम में डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया, यहाँ पे प्रोग्राम में मैंने क्या डिक्लेयर किया कि टॉप साइड से मैंने कितनी स्पेस छोड़ना चाहिए 100, और लेफ्ट साइड से कितनी स्पेस छोड़ना चाहिए 100, और उसी के बाद मेरा टेक्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए। तो मतलब क्या है, लेफ्ट मार्जिन का मीनिंग क्या है, एट हाउ मच स्पेस यू वांट टू लीव before writing text from the left, and how much space you want to leave before writing a text at the bottom. Okay, so here what we declare in left margin and top margin attribute, we declare a values, okay, और एक साथ हम एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट एक टैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो बॉडी टैग के कौन कौन से एट्रीब्यूट है, बॉडी टैग के बैकग्राउंड एट्रीब्यूट है, बीजी कलर एट्रीब्यूट, टेक्स्ट, लेफ्ट मार्जिन एंड टॉप मार्जिन एट्रीब्यूट, एंड ऑल दिस एट्रीब्यूट वी हैव सीन प्रैक्टिकली। और इसका तो मैं वीडियो भेज रही हूँ, मतलब आपको प्रैक्टिकली पूरा प्रोग्राम आपके सामने विजिबल है। तो प्लीज़ इफ़ पॉसिबल प्रैक्टिस इट्स एट होम, क्योंकि आगे इसके अंदर बहुत कुछ है जो हमें सीखना है, जो कि मोर HTML एलिमेंट्स है। ओके, so do practice everything at home properly. Okay guys, so I will end my lecture over here. Thank you.